नमस्कार दोस्तों, आपके और हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब में आप सभी का स्वागत करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आप सभी ने हमारे पिछले वीडियोस ज़रूर देखे होंगे। अगर नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ज़रूर देखें। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो आइए आज हम बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के सब्जेक्ट मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के 8th यूनिट नर्सिंग केयर ऑफ द एल्डरली के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की डिस्कशन टॉपिक होगा जेरिएट्रिक कंसिडरेशन इन नर्सिंग। So table of content or objectives of our topic will be: what is the meaning of geriatrics in slide number 6. Next, define aging in slide number 8. Next, list out the causes of aging in slide number 11. Purposes of geriatric nursing in slide number 13. Next, explain the age related changes in slide number 40. Next, list out the health promotion strategies in slide number 55. Let's see the meaning of geriatrics. Meaning of geriatrics. The term geriatrics is composed of two Greek words. First is geron, second one is iatrus. Geron means old man or old person. Iatrus means healer. And this geriatric study is basically dealing with the old age person, or that include the physiological, pathological changes in old age, psychological changes in old age, how to diagnose these conditions, how to manage the disorders and disease. So geriatric is dealing with all the problem linked to old age, or it is the study of old age. Now definition of geriatric or definition of aging. Aging can define as a progressive functional decline or a gradual deterioration of physiological function with age. So aging means decline or gradual deterioration of physiological, psychological function along with age. Aging is a continuous, a dynamic, complex process which starts from the birth and it ends with death. Aging developed due to the accumulation of changes due to cellular destruction or cellular damages. Though aging is a natural phenomena, but due to some reason aging can influence, like cellular damages, like DNA damage, like oxidative stress. These can influence the aging factors. Aging occur after the age 60 to 65 years, and in some cases aging can start just after 50 years also. Now definition of geriatric nursing. Geriatric nursing is a specialty that concerns itself with the provision of nursing services to geriatric or aged individual. So geriatric nursing is a special branch which is dealing with the provision of nursing services to geriatric and old age individual for solving the problem. Let's see the causes of aging. Though aging is a normal phenomenon, but there is certain causes which influence or the aging, और इस कॉजेस की वजह से कभी कभी एजिंग प्रोसेस जल्दी शुरू हो जाती है। तो और देखते हैं इसके क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं। फर्स्ट इज डीएनए डैमेज। सी डीएनए इनसाइड आवर सेल इज कंटिन्यूसली बीइंग डैमेज होते रहते हैं डीएनए, बट हमारे सेल में एक डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म होते हैं जिसको हम बोलते हैं इन हाउस डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म। जब हम ओल्ड एज होते हैं और एज हो जाते हैं तो this mechanism become less effective as we age, so DNA damage accumulate हो जाते हैं हमारे older tissue में. So first cause is DNA damage. Second one is mitochondrial DNA mutation. Mitochondrial DNA mutation, or you can say mitochondrial DNA changes. As you know, the mitochondrial are organelles which is known as powerhouse of our cell. For the cell,
to survive. When mitochondria do not work properly, the cell ages more quickly. Mitochondria are less effective in older cells, then they make less ATP. जब माइटोकॉन्ड्रिया ओल्ड एज में लेस इफेक्टिव हो जाते हैं, ATP भी लेस प्रोडक्शन होते हैं, तो हमारे सेल सर्वाइव नहीं कर सकते, हमारे सेल अच्छे से वर्क नहीं कर सकते, सेल में एजिंग जल्दी से जल्दी हो जाते हैं. नेक्स्ट, defective protein handling. Defective protein handling means प्रोटीन कंटिन्यूसली रिसाइकल्ड होते हैं. ओल्ड डैमेज प्रोटीन रिमूव हो जाते हैं, न्यू प्रोटीन का क्या होता है, प्रोडक्शन होते हैं. बट हम जब एजेड होते हैं तो इसमें ओल्ड प्रोटीन इकट्ठा हो जाते हैं, न्यू प्रोटीन का कोई प्रोडक्शन नहीं हो पाते. सो दिस इज नोन एज डिफेक्टिव प्रोटीन हैंडलिंग. नाउ टेलोमियर शॉर्टनिंग, नेक्स्ट कॉज. व्हाट इज टेलोमियर? टेलोमियर एक केमिकल कंपाउंड होते हैं विच बेसिकली फाउंड एट द एंड ऑफ द chromosome. Every time the cell divides, some of the telomere are lost. So older cell which have divided many times than younger cell, for this reason their shorter telomere may be found. In our body, one enzyme is there which is known as telomerase enzyme. This telomerase enzyme actually repair the telomere, but in the case of aging, this enzyme used to reduce, which leads to shortening of telomere and indirectly aging process शुरू हो जाती है. Next, stem cell exhaustion. What is stem cell? Stem cell एक hematopoietic cell होते हैं which is immature cell that is divided into generate adult cell. But so stem cell are important in the developing the tissues or regenerating tissues, but ओल्ड एज केस में स्टेम सेल का नंबर डिक्लाइन हो जाते हैं. तो दिस इज द कॉज ऑफ एजिंग. नेक्स्ट इज oxidative stress. What is oxidative stress? Oxidative stress is nothing but imbalance between the production of free radicals and the ability of the body to counter attack. हमारे जो free radicals होते हैं इसका production and हमारे body इसके against में कैसे counter attack करते हैं, इसके बीच में जो imbalance होते हैं इसको हम बोलते हैं oxidative stress. This free radical actually also known as reactive oxygen molecules. This is the unstable molecules. This unstable molecule can easily react with other molecules in a cell, and this reactive oxygen molecule in cell may cause damage to the DNA, RNA and protein, and these reactive oxygen molecules or free radical is the one cause of oxidative stress. अभी क्वेश्चन आते हैं कि this फ्री रेडिकल का प्रोडक्शन कैसे होते हैं. फ्री रेडिकल एक्चुअली इफेक्ट होते हैं हमारे नॉर्मल बॉडी प्रोसेस के, जैसे कि मेटाबॉलिज्म के बाद भी फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं, या कैंसर ड्रग्स, केमोथेरेपी के इफेक्ट की वजह से भी फ्री रेडिकल का प्रोडक्शन हो सकते हैं. स्मोकिंग, टोबैको, आजकल हम इतना जंक फूड लेते हैं, जंक फूड और फास्ट फूड, इससे भी फ्री रेडिकल और रिएक्टिव ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. अगर हमारी बॉडी ऑक्सीडेंट की प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं अच्छे से, एंड एंटीऑक्सीडेंट ही फ्री रेडिकल के अगेंस्ट में काम करते हैं, तो लेस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट लीड्स टू इंक्रीज अमाउंट ऑफ फ्री रेडिकल, एंड इसी फ्री रेडिकल की वजह से डीएनए डैमेज हो जाते हैं एंड जो एजिंग होते हैं. फर्स्ट इज कॉज डीएनए डैमेज, सेकेंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए चेंजेस, थर्ड डिफेक्टिव प्रोटीन हैंडलिंग, fourth telomere shortening, next stem cell exhaustion, next one is oxidative stress. Let's discuss the purposes of geriatric nursing. Geriatric nursing की क्या क्या purposes हो सकते हैं, क्या क्या पर्पज है. फर्स्ट है सपोर्ट द मैक्सिमम लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस. तो जेरिएट्रिक नर्सिंग से हम एल्डर पर्सन को एजुकेट कर देते हैं, इनको मोटिवेट कर देते हैं, इनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा देते हैं और इनको इंडिपेंडेंट बना देते हैं. नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करते हैं, मेक द पर्सन लाइफ लेस रेस्ट्रिक्टिव. इनको इतना साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं, इनको सिखा देते हैं कैसे डील करना है प्रॉब्लम के साथ, कैसे आप इंडिपेंडेंटली भी जी सकते हैं. इनको ऑक्यूपेशन में कभी कभी इन्वॉल्व कर देते हैं, तो इनका पर्सनल लाइफ को लेस रेस्ट्रिक्टिव बनाते हैं. नेक्स्ट, प्रोवाइड पीसफुल डेथ. पीसफुल डेथ प्रोवाइड करते हैं. कैसे पीसफुल डेथ प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जेरिएट्रिक लिंक विद द पेलिएटिव केयर. हम पेलिएटिव केयर से पर्सन को क्या करते हैं, पीसफुल डेथ प्रोवाइड कर सकते हैं.
Practice question, first practice question. Based on the previous slides, I prepared one practice question. Let's see this question. Which one is the causative factor of aging? First option is production of new cell decreases. Next, respiratory muscle become weaker. Next, blood flow to brain decreases. Next, oxidative stress. So A B C options जो है, this is the changes due to aging, but D option जो है वही एक one and only cause होते हैं जो aging create करते हैं, oxidative stress. What is oxidative stress? This is the imbalance between the free radicals and antioxidant of the body. This free radical is come out from जंक फूड से आते हैं, केमोथेरेपी ड्रग से आते हैं, सिगरेट स्मोकिंग से आते हैं, टोबैको से आते हैं. तो एंड दिस फ्री रेडिकल इज नॉट एट ऑल गुड फॉर आवर हेल्थ एंड वो क्या करते हैं, हमारे डैमेज कर देते हैं डीएनए को. दिस इज नोन एज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस. Let's see the changes related to old age. Old age में क्या क्या changes होते हैं. Here we will discuss the different body system changes. Discuss about different body system changes. First हम देखेंगे physical changes during aging. Physical changes means all the organs changes, body system changes. जैसे कि skin में क्या क्या changes हो सकते हैं, cardiovascular क्या changes हो सकते हैं, respiratory में, musculoskeletal में क्या क्या changes हो सकते हैं. Introduction. Most physical changes that occur with aging are gradual and take place over a long period of time. जितना भी physical changes होते हैं वो धीरे धीरे होते हैं and long time तक होते हैं. In addition, the rate and degree of changes varies among individual. Factors such as disease can increase the speed and degree of the changes. Lifestyle, nutrition, economic status, and social environment can also have effects. These changes include all body system changes. So the degree of changes or rate of changes will be depend on individuals, and there are certain factors like lifestyle factors, nutrition factors, economical status, stressful condition, social environment, family factor can also link with the physical changes. These changes include all the body system changes. Types of physical changes. First is integumentary skin changes, integumentary system changes. Integumentary means skin changes. As you know, skin does many things. It contains nerve receptor which help us to feel touch, pain and pressure, and it also control fluid and electrolyte balance, and it provide the protect us from external environment, maintain body temperature. So skin does so many things. Our skin has specially three main layers. It can be divided in epidermis, dermis and hypodermis or subcutaneous layer. जो epidermis होते हैं superficial layer which contains skin cell, pigment cell, protein, and this dermis is basically containing blood vessel, nerve, hair follicles and oil gland. The dermis provide nutrient to the epidermis, and inner layer or subcutaneous layer जिसमें रहते हैं fat, sweat gland, hair follicles. Each and every layer contain protein, connective tissues and collagen fibers in elastin fibers. So with aging के साथ साथ क्या changes होते हैं स्किन में, हमारे जो outer skin layer होते हैं epidermis वो thin हो जाते हैं, जिसकी वजह से रिस्क होते हैं इंजरी का, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क होते हैं. नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ न्यू स्किन सेल डिक्रीज होते हैं क्योंकि इसमें डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं. डिफरेंट न्यू स्किन सेल लाइक केराटिन सेल, अदर सेल का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाते हैं. जो पिगमेंट सेल होते हैं और मेलानोसाइट सेल होते हैं वो डिक्रीज होते हैं. एंड एजिंग में स्किन थीन दिखाया जाता है, पेल होते हैं, क्लियर होते हैं. इसमें ऑयल एंड स्वेट ग्लैंड बिकम लेस एक्टिव होते हैं जिसकी वजह से स्किन ड्राईनेस हो जाते हैं. स्किन में सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन डिक्रीज हो जाते हैं. स्कल्प में हेयर जो होता है वो थीन होते हैं. स्किन बिकम लेस इलास्टिक एंड ड्राई. वाई लेस इलास्टिक? क्योंकि कोलाजन और इलास्टिन फाइबर जो होते हैं उसका अमाउंट बहुत कम हो जाता है. इचिंग इज कॉमन बिकॉज स्किन ड्राई हो जाते हैं. स्किन में जो स्वेट ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड से ज़्यादा स्वेट प्रोडक्शन नहीं हो पाते हैं. जो ऑयल ग्लैंड है, ऑयल ग्लैंड भी
फंक्शन डिग्रेड हो जाते हैं, विच लीड्स टू ड्राइनेस ऑफ द स्किन, एंड इसी ड्राइनेस की वजह से क्या होते हैं, ईचिंग हो जाते हैं। और भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जस्ट लाइक दैट जो भी ब्लड वेसल्स होते हैं डर्मिस में, दिस ब्लड वेसल्स बिकम मोर फ्रेजाइल एंड विच लीड्स टू ब्लीडिंग अंडर द स्किन। उसके बाद सीबेसियस ग्लैंड प्रोड्यूस लेस ऑयल एज वी एज के साथ साथ सीबेसियस ग्लैंड क्या करते हैं, लेस ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, इसकी वजह से भी स्किन ड्राई हो जाते हैं। देन सबक्यूटेनियस फैट जो लेयर होते हैं वो लेयर थिन हो जाते हैं, दिस इंक्रीज द रिस्क ऑफ स्किन इंजरी एंड रिड्यूस बॉडीज एबिलिटी टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, और पेशेंट को ज़्यादा हीट फील होता है। देन स्वेट ग्लैंड क्या करते हैं, लेस स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, इसके वजह से कूलिंग मैकेनिज्म स्लो हो जाते हैं, देयर विल बी रिस्क ऑफ ओवर ईटिंग। नेक्स्ट रिंकल होते हैं पेशेंट्स के, रिंकल्स क्यों होते हैं, क्योंकि स्किन प्रोड्यूस लेस ऑफ इलास्टिन एंड कोलाजन, दिस लेस इलास्टिन एंड कोलाजन की वजह से स्किन थीन हो जाते हैं, लेस रेजिस्टेंट हो जाते हैं डैमेज के लिए, एंड सर्टेन एनवायरमेंटल एक्सपोजर, टॉक्सिन, डिहाइड्रेशन, all these factors make our face more likely to develop wrinkles। and कभी कभी हमारे स्किन्स में, फेस में ए स्पॉट और ब्लैक स्पॉट, ब्राउनी स्पॉट दिखाई देते हैं, बिकॉज इसकी रीज़न है जो यूवी लाइट हमारे स्किन में एक्सपोज होते हैं एंड मेलानिन बिल्डअप बढ़ा देते हैं, एंड हाईली कंसंट्रेशन में मेलानिन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में प्रोड्यूस होते हैं, विच रिजल्ट इन ए स्पॉट। देख सकते हो नेल बिकम थिक, टफ एंड ब्रिटेल, क्योंकि इसमें प्रोटीन कम हो रहा है, तो इसकी वजह से केराटिन प्रोटीन कम होने की वजह से नेल भी अपने आप थिक होना शुरू हो गया। ऑल द फैक्टर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे से। नेक्स्ट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम चेंजेस। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, हार्ट एक स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं जो क्या करते हैं, पंप करते हैं ब्लड का। हार्ट हैज टू साइड, वन एट्रियम वन वेंट्रिकल। द राइट साइड के क्या करते हैं, पंप करते हैं ब्लड को लंग्स में एंड ऑक्सीजन पिक करते हैं। लेफ्ट साइड क्या करते हैं, रिसीव करते हैं ब्लड विद ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स एंड पंप इट थ्रू आर्टरीज थ्रू आउट द बॉडी। और हार्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम को भी रेगुलेट करते हैं। जब बट एजिंग के साथ साथ हमारे हार्ट में डिफरेंट चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, ब्लड वेसल्स में चेंजेस आते हैं। क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, जैसे कि हमारे हार्ट इतना बीट, जो आवर हार्ट कैन बीट एज फास्ट ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी और टाइम ऑफ स्ट्रेस एज इट डिड व्हेन वी आर यंगर। एक हार्ट डिजीज होती है, इसके मेजर कॉज होते हैं हार्ट डिजीज का बिल्डअप ऑफ फैटी डिपॉजिट और प्लग, जिसको हम बोलते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। इस आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की वजह से हमारे आर्टरीज जो होते हैं हार्ड हो जाते हैं, हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज। इसकी हार्डनिंग से, स्टिफनेस से, ठीक होने से आर्टरी ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं, विच इज़ वेरी कॉमन इन एज और इन ओल्ड एज हार्ट डिजीज डेवलप होते हैं। नेक्स्ट जो हार्ट वाल्व होते हैं वो हार्ट वाल्व ठीक हो जाते हैं, चैम्बर थिकन हो जाते हैं एंड बिकम स्टीफ। तो स्टीफ होने से लो अमाउंट ऑफ ब्लड ही उस एरिया में रह सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड होल्ड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्लड फ्लो कम हो जाता है डिफरेंट ऑर्गन में। पेसमेकर में जो सेल होते हैं वो सेल लॉस होना शुरू हो जाते हैं, फाइब्रस टिश्यू, स्कार टिश्यू, फैट डिपोजिशन हो जाते हैं पेसमेकर में। एंड बैरो रिसेप्टर का फंक्शंस डिटोरिएट हो जाते हैं। बैरो रिसेप्टर एक्चुअली क्या करते हैं, जो ब्लड प्रेशर है उसको मॉनिटर करते हैं, एडजस्ट करते हैं ब्लड प्रेशर को हमारे पोजीशन के साथ साथ। सो जब भी हम पोजीशन चेंज करते हैं तो बैरो रिसेप्टर भी इसको मॉनिटर करते हैं, तो विच लीड्स टू ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम चेंजेस। रेस्पिरेटरी सिस्टम चेंजेस में क्या क्या चेंज आते हैं, जैसे डिस्पनिया होंगे, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगा, कफिंग होगा, इन्फेक्शन हो सकता है, निमोनिया हो सकता है। उसके पीछे रीज़न है कि डीजेनरेटिव चेंजेस की वजह से रेस्पिरेटरी मसल्स बिकम वीकर, रीप केस रिजिड हो जाते हैं, एल्वियोलाई थिन एंड लेस इलास्टिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से गैस एक्सचेंज डिक्रीज हो जाते हैं। ब्रोंकियल्स लॉस, इलास्टिसिटी, लैरिंग्स में चेंज हो जाते हैं, हायर पिच्ड और वीक वॉइस आते हैं, एंड इसके साथ साथ इम्यून कॉम्प्रोमाइजेशन भी दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट नर्वस सिस्टम चेंजेस। नर्वस सिस्टम चेंजेस में
क्या क्या हमको याद रखना है, जब ब्लड फ्लो जो होते हैं ब्रेन में वो डिक्रीज हो जाते हैं, विच लीड्स टू डैमेज ऑफ द ब्रेन सेल, जिसके विच इंटरफेयर विद द थिंकिंग, रीजनिंग, रिमेंबरिंग, रिएक्टिंग, एवरीथिंग. नेक्स्ट, सेंसेस ऑफ टेस्ट, स्मेल एंड विजन, हियरिंग आर डिमिनिश्ड. नर्व एंडिंग क्या होते हैं, इसमें लेस सेंसिटिव होते हैं, विच लीड्स टू डिक्रीज एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड टू पेन. नर्व एंडिंग लेस सेंसिटिव होने की वजह से पेशेंट को पेन पता नहीं चलते हैं, अदर स्टिमुलस के बारे में भी इतना आइडिया नहीं होते हैं. एंड डिक्रीज इन टेस्ट एंड स्मेल, इट्स एफेक्ट फ्रीक्वेंटली एफेक्ट द एपेटाइट. इसमें और भी होते हैं, विजन चेंज होते हैं, विजन चेंज के वजह से पेशेंट में प्रॉब्लम होते हैं स्मॉल स्मॉल वर्ड्स को रीड करने में, सीइंग ऑब्जेक्ट एट द डिस्टेंस में जो ऑब्जेक्ट है उसको नहीं देख पाते हैं. डिक्रीज इन पेरिफेरल विजन, डिक्रीज इन नाइट विजन, इंक्रीज सेंसिटिविटी टू लाइट, क्लियर, कैटरेक्ट एंड ग्लूकोमा भी इसमें कॉमन प्रॉब्लम होते हैं. नेक्स्ट, चेंजेस इन हियरिंग. हियरिंग में क्या क्या चेंजेस आते हैं, जैसे कि हियरिंग लॉस यूजुअली ग्रेजुअल होते हैं. पर्सन इसमें मे स्पीक लाउडर देन यूजुअल, इसको लगता है क्योंकि सुनाई नहीं देते तो वो जोर से बोलने की कोशिश करते हैं. नेक्स्ट, रिपीटेडली वर्ड को पूछा जाते हैं कि आपने क्या बोला, फिर से दोबारा बताइए. नेक्स्ट, नॉट हियर हाई फ्रीक्वेंसी साउंड. हाई फ्रीक्वेंसी साउंड उनको सुनाई नहीं देते हैं. मे नॉट हियर वेल इन क्राउडेड प्लेसेस. डिक्रीज सेंसेशन टू पेन एंड अदर स्टिमुलाई. Now digestive system changes. Digestive system changes में fewer digestive juice and enzymes are produced. Why fewer digestive juice and enzymes? Because of decrease or reduced liver function. In degenerative cases और जब हम aged होते हैं, the volume of blood flow to the liver gradually decreases with aging. Such changes are related to decline in the blood flow in the liver and which leads to reduce the function of the liver cell. अगर liver का function नहीं हो पाएंगे तो digestive juices and enzyme का भी production नहीं होगा. अगर digestive juice and enzyme का production नहीं हो रहा है तो digestion rate भी कम हो जाएगा. इसमें dysphagia होते हैं patients के साथ. dysphagia होने के पीछे बहुत सारे reasons है, जैसे कि अगर nerve damage अगर हो रहा है या कोई tumor growth हो रहा है या any spinal cord injury, Parkinson disease की वजह से नर्व डैमेज होते हैं. दिस इज द वन कॉज. अगर इसोफेगस में स्ट्रिंचर हो गया, नैरोइंग हो गया, जिसकी वजह से लार्जर पीस ऑफ फूड ट्रैप हो रहा है इसोफेगस में, विच ऑल्सो लीड्स टू डिस्फेजिया. दिस इज द अनदर कॉज ऑफ डिस्फेजिया. अगर समटाइम्स ब्लॉकेज डेवलप बाय फूड नॉट बीइंग च्यूड प्रॉपर्ली. अगर खाना को जिससे च्यू नहीं किया जाते हैं तो फूड पार्टिकल ब्लॉक कर देते हैं, विच ऑल्सो लीड्स टू डिस्फेजिया. डिस्फेजिया क्यों हो सकते हैं? डिस्फेजिया हो सकते हैं अगर नर्व डैमेज हो रहा है. नर्व डैमेज मे बी ड्यू टू स्ट्रोक, ड्यू टू ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, एनी पार्किंसन डिजीज, मस्कुलर डिस्ट्रोफी. तो नर्व डैमेज. सेकेंड इज नैरोइंग ऑफ द इसोफेगस. थर्ड वन इज ब्लॉकेज कॉज्ड बाय फूड नॉट बीइंग च्यूड प्रॉपर्ली. सो डिस्फेजिया इज द मोस्ट कॉमन कंप्लेंट. टीथ लॉस्ट हो जाते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट डिक्रीज हो जाते हैं, विच लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन. बिकॉज अगर स्लो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं तो वाटर गेट एब्जॉर्ब, more water get absorbed from food waste which can cause constipation. and बहुत सारे medication भी constipation create करते हैं. ओल्ड एज में अगर कोई नार्कोटिक्स मेडिकेशन ले रहा है या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, वो भी क्या करते हैं, कॉन्स्टिपेशन क्रिएट कराते हैं. इनएक्टिविटी, ओल्ड एज केस में कभी कभी इनएक्टिव हो जाते हैं पर्सन, सो दैट्स आल्सो लीड टू कॉन्स्टिपेशन. नाउ यूरिनरी सिस्टम चेंजेस. यूरिनरी सिस्टम चेंजेस में जब एज वी गेट ओल्डर द ब्लडर चेंज, ब्लडर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं. ब्लडर जैसे कि लेस स्ट्रेची हो जाते हैं एंड इट कैनॉट होल्ड एज मच एज यूरिन एज बिफोर. एंड इसकी वजह से आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ सकते हैं. देन pelvic floor muscles, bladder wall may weaken, make it harder to empty the bladder fully and causing urine to leak. bladder का जो muscles होते हैं, supporting structure होते हैं, वो weak हो जाते हैं. इसकी वजह से bladder empty करने में difficulty होते हैं, which leads to leakage of urine. आप इस इमेज में भी अच्छे से देख सकते हो. इसमें इन्फ्लेमेशन हो सकते हैं ब्लैडर में, सिस्टाइटिस जिसको हम बोलते हैं. इसमें प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होते हैं. BPH इज द मोस्ट कॉमन
सिम्टम्स फॉर मेल, ब्लडर प्रोलप्स होते हैं बिकॉज उसके जो मसल्स एंड लिगामेंट्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से होल्ड नहीं कर पाते ब्लडर को, एंड ब्लडर का एंड पेल्विक ऑर्गन्स के इन फीमेल प्रोलप्स होने का चांसेस है। किडनी का साइज डिक्रीज हो जाते हैं, सर्कुलेशन नहीं हो पाते किडनी में, नेफ्रॉन का कम होता है फिल्ट्रेशन, नेफ्रॉन का नंबर्स भी कम हो जाते हैं, जैसे कि अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं पर किडनी, बट इन ओल्ड एज इसका नंबर्स बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। ब्लडर फंक्शन वीकन हो जाते हैं क्योंकि ब्लडर, अपने मैंने पहले बता दिया था, ब्लडर लेस स्ट्रेची हो जाते हैं तो होल्ड करके यूरिन को होल्ड नहीं कर पाते हैं, एंड जितना भी मसल्स होते हैं, पेल्विक फ्लोर मसल, ऑल द लिगामेंट्स एंड सराउंडिंग स्ट्रक्चर वीक हो जाते हैं, एंड ब्लडर एम्प्टी करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाते हैं ओल्ड एज पर्सन के लिए। नेक्स्ट, एंडोक्राइन सिस्टम चेंजेस। एंडोक्राइन सिस्टम चेंजेस में डिफरेंट चेंजेस होते हैं। इन सम ऑफ द केसेस कोई हार्मोन का प्रोडक्शन ज़्यादा होते हैं, कभी कभी हार्मोन के प्रोडक्शन भी कम भी होते हैं। हम देखते हैं थायराइड ग्लैंड का प्रोडक्शन, थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस लेस थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से बेसल मेटाबॉलिक रेट भी ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाते हैं। अगर बेसल मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज हो रहा है तो हमारे बॉडी में फैट बढ़ेंगे एंड बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं हो पाएगा, तो थायराइड हार्मोन डिक्रीज हो जाते हैं इन ओल्ड एज, विच लीड्स टू डिक्रीज बीएमआर, एंड बीएमआर कम होने की वजह से फैट बढ़ते हैं ओल्ड एज में। साथ में देखते हैं जो पैराथायरॉयड हार्मोन होते हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन दूसरा साइड में बढ़ जाते हैं एजिंग के साथ साथ, थायराइड हार्मोन कम हो जाते हैं बट पैराथायरॉयड हार्मोन बढ़ते हैं। क्यों पैराथायरॉयड हार्मोन बढ़ते हैं? द रीजन इज रिड्यूस डाइटरी कैल्शियम इनटेक, एंड इसकी वजह से पैराथायरॉयड हार्मोन बढ़ रहा है। तो पैराथायरॉयड हार्मोन बढ़ने की वजह से फीमेल में और मेल में भी ऑस्टियोपोरोसिस होने का चांसेस है, क्योंकि पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करते हैं, बोन से कैल्शियम को ब्लड में ले आते हैं, ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ा देते हैं, बोन में जो कैल्शियम लेवल होता है वो कम हो जाते हैं, इसकी वजह से बोन स्पॉन्जी हो जाते हैं एंड ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होते हैं। तो थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन कम हो जाते हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन की प्रोडक्शन बढ़ते हैं, और भी बहुत सारे हार्मोन जैसे कि ईस्ट्रोजन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रोडक्शन भी कम हो जाते हैं। एंड एजेड होने के साथ साथ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में भी इफेक्ट होते हैं, ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, बट जल्दी नॉर्मल पोजीशन में नहीं आता है। इसके पीछे रीज़न है हमारे जो सेलुलर इंसुलिन सेंसिटिविटी होता है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्लाइन होना शुरू हो जाते हैं, व्हिच लीड्स टू इंक्रीज ग्लूकोज इन द ब्लड। नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम चेंजेस। रिप्रोडक्टिव सिस्टम चेंजेस में फीमेल में मेनोपॉज के साथ साथ या मेनोपॉज के टाइम में डिफरेंट जेनाइटल ऑर्गन में चेंजेस होते हैं, जैसे कि हमारे जो टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज ऑफ लेबियम माइनोरा, क्लेटोरिस एंड वेजाइना थीन हो जाते हैं। थीन होने की वजह से इसमें इरिटेशन होते हैं, ड्राइनेस होते हैं, इन्फेक्शन होने का चांसेस है, डिस्चार्ज होते हैं वेजाइना से, एंड और मेनोपॉज के साथ हमारी यूटेरस, फेलोपियन ट्यूब और ओवरी स्मॉल हो जाते हैं विद एजिंग। देन देयर विल बी डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ मसल एंड कनेक्टिव टिश्यू, लिगामेंट्स जो सपोर्ट करके रखते हैं हमारे ब्लडर, यूटेरस एंड वेजाइना एंड रेक्टम को, इसका सपोर्ट जो होता है वो वीक होना शुरू हो जाता है, इसके वजह से हमारे एफेक्टेड ऑर्गन जो है उसका प्रोलैप्स होते हैं। समटाइम्स पेल्विक फुलनेस फील होते हैं, इनकॉन्टिनेंस होते हैं, पेन होते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम में। एंड ब्रेस्ट में क्या चेंजेस आते हैं, ब्रेस्ट में एडिपोज टिश्यू रिप्लेस हो जाते हैं फैट टिश्यू से, एंड जिसकी वजह से ब्रेस्ट ड्रॉप डाउन हो जाते हैं नीचे की तरफ, और फाइब्रस टिश्यू क्या हो जाते हैं, रिप्लेस होते हैं फैट से। नेक्स्ट, मेल में स्पर्म प्रोडक्शन डिक्रीज होता है, सेक्सुअल स्टिमुलेशन स्लो होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन दिखाए जाते हैं, टेस्टिकुलर मस डिक्रीज हो जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज ग्रेजुअली, and seminal fluid become thinner and less in production. Practice question second. What is the causes of orthostatic hypotension during old age? The option is heart rate slow. Next,
baroreceptor become less sensitive, next blood flow to brain decreases, next is all of the above. तो इसका रैशनल है baroreceptor become less sensitive, it is the only cause. हमने पहले भी देखा है कि causes में baroreceptor क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं प्रेशर को अगेंस्ट द पोजीशन. तो इसमें बैरोरिसेप्टर लेस सेंसिटिव होने की वजह से ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन दिखाई देते हैं. नाउ साइकोसोशियल चेंजेस ऑफ एजिंग. इंट्रोडक्शन. Some individuals cope with psychosocial changes and others experience extreme frustration and mental distress. Healthcare worker must be aware of these and changes, assess changes and stresses. Psychosocial changes means psychological changes हो सकते हैं ओल्ड एज में. आप देख सकते हो बिकॉज आप देख सकते हो जितना भी ओल्ड एज पर्सन होते हैं वो लोग अकेले ही रह जाते हैं, उनके साथ कोई नहीं रहता रहने के लिए, या उनके पास जॉब भी नहीं आता है, तो सोशलाइजेशन होना भी उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है. तो ड्यू टू दिस रीज़न और ड्यू टू दिस चेंजेस, लॉट्स ऑफ चेंजेस, दे आर सफरिंग फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, साइकोसिस, मेंटल डिस्ट्रेस, सो मेनी साइकोलॉजिकल सिम्टम अराइज होते हैं. टाइप्स ऑफ साइकोसोशियल चेंजेस. फर्स्ट इज कन्फ्यूजन एंड डिसओरिएंटेशन. कन्फ्यूज हो जाते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, उनको कुछ ही पता नहीं चलता है. डिसओरिएंटेड हो जाते हैं, टाइम प्लेस पर्सन के बारे में भी कभी कभी पता नहीं चलते उनको. इसमें फर्स्ट इज डेलीरियम. डेलीरियम इज ऑफन कॉल्ड एज एक्यूट कन्फ्यूजन स्टेट, बिगिन विद कन्फ्यूजन एंड प्रोग्रेशन टू डिसओरिएंटेशन. तो डेलीरियम मीन्स कन्फ्यूजन को भी हम डेलीरियम बोलते हैं. दिस इज द एक्यूट कन्फ्यूजन स्टेट. इसमें कन्फ्यूजन से शुरू होता है एंड साथ में डिसओरिएंटेशन. डिसओरिएंटेशन मीन्स पेशेंट में नॉट अवेयर अबाउट द टाइम प्लेस पर्सन. उसको ऐसा भी हो सकता है उसके घर का है वो भी उनको पता नहीं है, अभी टाइम क्या है नहीं पता, कहाँ पे रहता है वो भी नहीं पता है. Sign: talking incoherently, not knowing their name, not recognizing others, wandering aimlessly, lacking awareness of time or place, displaying hostile and combative behavior, hallucinating, regression in behavior. Next, paying less attention to personal hygiene. Next, inability to respond to simple command or instruction. Okay, signs is talking incoherently. What they will speak आपको कुछ ही समझ में नहीं आएंगे. नॉट नोइंग देयर नेम, इवन कभी कभी उनको उनका नाम ही नहीं पता होता है. नॉट रिकॉग्नाइजिंग अदर, दे आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज द रिलेटिव्स, अदर पर्सन. देन लैक ऑफ अवेयरनेस, हेलुसिनेटिंग, रिग्रेशन बिहेवियर, अटेंशन भी कम होते हैं, कंसंट्रेशन इज़ वेरी वेरी लेस. इनएबिलिटी टू रेस्पॉन्ड, उसको बार बार बुलाने से, रिपीटेडली बुलाने से तब जाके रेस्पॉन्ड होगा, नहीं तो दे आर नॉट एबल टू रेस्पॉन्ड इन वन कमांड और वन इंस्ट्रक्शन. नाउ डिमेंशिया. डिमेंशिया इज नथिंग बट loss of memory. It is loss of mental ability characterized by a decrease in the intellectual ability, loss of memory, impaired judgment, personality changes and disorientation. Dementia is nothing but loss of memory, impaired judgment, lack of intellectual ability, disorientation, personality changes. Types. When the symptoms are caused by temporary reason like high fever, dehydration and hypoxia, इसको हम एक्यूट डिमेंशिया बोलेंगे. क्रॉनिक डिमेंशिया मीन्स अगर सिम्टम्स परमानेंटली होते हैं और ड्यू टू डैमेज इन द ब्रेन सेल, इसको हम बोलेंगे परमानेंट और क्रॉनिक डिमेंशिया. तो डिमेंशिया का भी स्टेजेस होते हैं लाइक अर्ली स्टेज, मिडिल स्टेज एंड लेट स्टेज. 3 स्टेज होते हैं डिमेंशिया में. अर्ली स्टेज में मेमोरी लॉस होते हैं, मूड एंड पर्सनल चेंजेस, पर्सनैलिटी चेंजेस हो रहा है, डिप्रेशन में जाएंगे, जजमेंट नहीं कर पाएंगे, कन्फ्यूजन होगा, कन्फ्यूजन रिगार्डिंग टाइम एंड प्लेस, इनएबिलिटी टू प्लान, वो सारे सिम्टम्स आएंगे अर्ली स्टेज में. मिडिल स्टेज में नाइट टाइम में रेस्टलेस हो जाएंगे, कभी कभी मिड नाइट में उठ जाएंगे, लैक ऑफ स्लीप, इंसोम्निया दिखाई देंगे, मूड स्विंग होगा, कभी खुश है कभी तो सैड है, समटाइम्स दे आर हैप्पी, समटाइम्स दे आर सैड. पर्सनल हाइजीन इग्नोर्ड, वेट फ्लक्चुएशन, समटाइम्स वेट इंक्रीज, कभी कभी वेट रिड्यूस हो जाते हैं, पेरानिया होते हैं, डाउट करना शुरू कर देते लोगों को, हेलुसिनेट करना शुरू हो जाते हैं. फुल टाइम सुपरविजन इज नीडेड इन दिस केस. नेक्स्ट लेट स्टेज. लेट स्टेज इज टोटल डिसओरिएंटेशन, अनएबल टू कम्युनिकेट विद वर्ड्स, लॉस कंट्रोल ऑफ ब्लडर, डिसओरिएंट हो जाएंगे टोटली.
कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, इग्नोर करना शुरू कर देंगे अदर बाकी पर्सनस को, दे स्टार्ट डेवलपिंग सीजर्स, कन्वर्शन डेवलप होंगे, लो वेट होंगे, इस केस में पेशेंट में एक्सपायर ऑल्सो. सो देर आर टोटल 3 stages of dementia: early, middle and late stage. Alzheimer disease. Alzheimer disease is the form of dementia that cause progressive changes in the brain cell. इसके वजह से brain cell become die or degenerate, eventually destroy, losing the memory and other important mental function. Now, cognitive aspect of the aging. This cognition is relating to conscious intellectual activity like thinking, reasoning and remembering. इसको हम बोलते हैं cognition. Cognition can be affected by many variables including sensory impairment, physiologic health, environment and psychosocial influences. This cognition or our conscious intellectual ability is depend on different variables: physiological health, our own health, our environmental variable, psychosocial variable, psychological status of the individual. Older adult may experience temporary changes in cognitive function when hospitalized or admitted in skilled nursing facilities, rehabilitation center or long-term care facility. These changes are related to difference in the environment or in medical therapy or alteration in the performance. Cognition में changes आते हैं, अगर कोई बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल में रहते हैं, तो इनको जो कैपेसिटी होते हैं, थिंकिंग कैपेसिटी टेम्पररीली चेंज हो जाते हैं बिकॉज ड्यू टू द एनवायरमेंटल स्ट्रक्चर, मेडिकेशन इफेक्ट की वजह से. चेंजेस इन इंटेलिजेंस. आपको पता है कि ओल्ड एज में अगर इंटेलिजेंस स्कोर देखा जाए दिस विल बी लो स्कोर एज कंपेयर टू टेस्ट स्कोर ऑफ यंगर एडल्ट्स. लर्निंग एंड मेमोरी में भी अभी उनको मैनी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे कि ओल्डर एडल्ट हु हैव हायर लेवल ऑफ एजुकेशन, गुड सेंसरी फंक्शंस, गुड न्यूट्रिशन एंड जॉब्स दैट रिक्वायर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग स्किल कंटिन्यू डेमोस्ट्रेट इंटेलिजेंस, मेमोरी एंड कैपेसिटी ऑफ लर्निंग. कंटिन्यू लर्निंग, इंटेलिजेंस और मेमोरी को इंटेक रखने के लिए ओल्डर एडल्ट को हमेशा एजुकेशन के साथ रहना ज़रूरी है, नहीं तो उनका लर्निंग एंड मेमोरी भी डिमिनिश हो जाते हैं. Practice question 3. Delirium is often known as dementia, memory loss, acute confusion state and cognitive function. As you know, delirium is also known as acute confusion state. तो confusion से शुरू होते हैं and at last disorientation हो जाते हैं. Let's see the health promotion strategies. First, health promotion strategies for integumentary system changes. This is the first physical changes we have already studied. Mild soap. Advise the patient to use mild soap. Some bath oil they can also apply. Bath or shower once or twice a week. Brush करना है daily. Shampoo use करना है. Next, care for injuries, any sores, any scar marks immediately care करना है. Socks, sweater, blankets, layer of clothing will help alleviate the feeling of coldness. इसमें पेशेंट को फील होता है कोल्ड बिकॉज फैट टिश्यू लेयर कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से हीट प्रोडक्शन नहीं हो पाते बॉडी में. नेक्स्ट, हेल्थ प्रमोशन स्ट्रेटेजीज फॉर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. Avoid heaviest exercise. Ask the patient to take some rest. Moderate exercise is beneficial for them. Support stockings to prevent deep vein thrombosis. Do not wear tight band. Tight band use नहीं करना. Low salt intake. Decrease fat intake because already atherosclerosis होके रखते हैं पेशेंट में. Exercise is recommended by physician. Physician के ऑर्डर से एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्पेशली वॉकिंग कर सकते हैं. एरोबिक एक्सरसाइज इज रिकमेंडेड फॉर दोज पर्सन. नेक्स्ट, हेल्थ प्रमोशन स्ट्रेटजीज फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम चेंजेस. फर्स्ट इज alternate activity with period of rest. Second, proper body alignment and positioning. Third, sleep in semi-fowler position. Use 2 or 3 pillows. Next, avoid polluted air. Next, breathe deeply and cough frequently. May need continuous oxygen therapy. And respiratory system changes
में अगर प्रमोशन के लिए एडवाइस और ask the patient to take rest in between activity. Proper body alignment is needed. Semipolar position should give to the patient or provide semipolar position to the patient. Avoid polluted area और polluted air because patient में pneumonia होते हैं, immunity compromise होते हैं, तो polluted air को क्या करना है, avoid करना है. Breathing exercise is recommended for this patient. Next, health promotion strategies for nervous system changes. It is important for nurse to teach safety issues, use of sensory stimulation like hear aid, magnified glass, arm clock, television, radio, etc. Health promotion strategies for digestive system changes. Oral hygiene is needed for the patient. Repair or replace damaged teeth, care of teeth, relax eating atmosphere, high fiber, mainly important high fiber and high protein food because patient में constipation होते हैं and muscle mass भी decrease हो जाते हैं, तो for regenerate this high fiber and high protein food is advisable for the patient. Test improve करना है, advise the patient to take food in interval, increase fluid intake. Next, health promotion strategies for urinary system changes. Urinary system changes के लिए क्या क्या health promotion strategies है? Ask the patient to take fluid before going to bed. Regular tips to bathroom. Easy to remove clothing. Absorbent pad use करना चाहिए. यूरिनरी सिस्टम चेंजेस के लिए पेशेंट को बोलना है पानी पीने के लिए और बाथरूम जाने के लिए रेगुलर से रेगुलर they can use the pad also. Health promotion strategies for endocrine system. Proper exercise, control the weight, balanced diet, healthy lifestyle, medical treatment, medical referral is needed to maintain the endocrine system. अगर थायराइड का प्रॉब्लम है, थायराइड डिसफंक्शंस है, तो every 3 month में थायराइड चेकअप इज मैंडेटरी और डेली ग्लूकोज CBG चेक करना चाहिए पेशेंट्स को. नेक्स्ट, हेल्थ प्रमोशन स्ट्रेटजीज फॉर रिप्रोडक्टिव सिस्टम चेंजेस. Understand physical and psychological sexual needs of the elderly. Allow married couple to be in the same room and give privacy to consenting elderly. Health promotion strategies for delirium patients. जो भी delirium patient होते हैं और कन्फ्यूजन में रहते हैं, इन पेशेंट के लिए सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट देना है. सेम रूटीन हमेशा फॉलो करना है, अदरवाइज दे विल बी मोर एंड मोर कन्फ्यूज. जो भी एक्टिविटी होता है उसको सिंपल स्लो एक्टिविटी फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक्टिविटी को बाउंड नहीं करना है. बिकॉज अगर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक्टिविटी बाउंड करेंगे तो पेशेंट में पेशेंस नहीं रहेंगे और बहुत इरिटेट हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे. लाउड नॉइज, क्राउडेड रूम इज नॉट एट ऑल फॉर दोज पेशेंट. प्रोमोट अवेयरनेस ऑफ पर्सन, टाइम एंड प्लेस बाय प्रोवाइडिंग रियलिटी ओरिएंटेशन करवा के टाइम प्लेस पर्सन को प्रमोट करा सकते हैं. एंड नर्सेज कैन ऑल्सो शो देम प्रीवियस ओल्ड पिक्चर्स ऑफ फैमिलियर ओल्ड फैमिलीज ओल्ड पिक्चर्स शो कर सकते हैं सो दैट दे कैन ईजिली रिमेंबर देम और कंफ्यूज ना हो पर्सनस के साथ में. हेल्थ प्रमोशन स्ट्रेटजीज फॉर डिमेंशिया पेशेंट. और डिमेंशिया मीन्स मेमोरी लॉस जिनमें होते हैं. एड्रेस पर्सन बाय नेम, जितना पॉसिबल है पर्सन को नाम से रिकॉग्नाइज करना है. स्टेट नेम करेक्टली. एल्डरली इफ यू कॉल बाय द रॉन्ग नेम. correct elderly if called by you by the wrong name. तो wrong name से अगर आप लोग को बुलाते हैं तो आपको इसको करेक्ट करना है. नेक्स्ट, मेक रेफरेंस टू डे टाइम एंड प्लेस. डे टाइम एंड प्लेस के लिए रेफरेंस देना है. आपको कैलेंडर रखना है या आप कोई इमेज रख सकते हो कि मंडे की इमेज के लिए हमें वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को फॉलो करेंगे, ट्यूसडे के लिए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को फॉलो करेंगे. यूज़ क्लॉक्स, कैलेंडर, डिफरेंट क्लॉक कैलेंडर यूज़ करेंगे फॉर make the person remember about date, time and place. Keep individual orient to day-night cycle. Speak slowly, clearly. Ask clear and simple question. Complicated question नहीं पूछना है क्योंकि patient को समझ ही नहीं आएंगे. Never rush or hurry the individual and repeat instruction patiently.
इंस्ट्रक्शन को 2-3 बार रिपीट करना है, क्योंकि इन पेशेंट में मेमोरी लॉस हो जाते हैं, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। नेक्स्ट, एनकरेज कन्वर्सेशन अबाउट फैमिलियर थिंग्स एंड current events. Encourage use of televisions. Be sure individual use sensory aids. Keep familiar object in view. Avoid moving furniture. Do not agree with incorrect statement. Do not hesitate to touch, communicate with person. Avoid argument. Encourage independence and self-help whenever possible. Encourage use of television, radio without overstimulating them, because they will divert their mind. Be sure individual use sensory aids. सेंसरी एड का यूज़ ज़रूरी है, मैंडेटरी है, क्योंकि इन ओल्ड एज पेशेंट सफ़र फ्रॉम हेयरिंग प्रॉब्लम। की फेमिलियर ऑब्जेक्ट इन व्यू, अवॉइड मूविंग फर्नीचर एंड बिलोंगिंग्स। फेमिलियर ऑब्जेक्टिव रखना है, कोई भी फर्नीचर को बार बार चेंज नहीं करना है। डू नॉट एग्री विद इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आर्गूमेंट में नहीं जाना है। पेशेंट को कम्युनिकेशन करने में कभी भी हेजिटेट नहीं होना। We can provide therapeutic touch to the patient. Do not hesitate about it. Encourage independence of the patient. Health promotion strategies for cognitive dysfunction. Cognitive dysfunction के लिए हमें क्या करना चाहिए? Learning process. We have to encourage the patient for learning using visual, auditory, other sensory devices. Provide glare-free lighting to the patient. White environment आपको प्रोवाइड करना है। शॉर्ट टर्म गोल सेट करना है, सो दैट इसी शॉर्ट टर्म गोल में आपकी जो पेशेंट्स है वो कंप्लीट कर सकते, वर्क कंप्लीट कर सकते, गोल कंप्लीट कर सकते हैं। कीपिंग टीचिंग पीरियड शॉर्ट। एनकरेज वर्बल पार्टिसिपेशन बाय लर्नर के साथ कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन वी हैव टू ऑलवेज मेंटेन। तो आज हमने डिस्कस किया है जेनेट्री कंसिडरेशन इन नर्सिंग के बारे में। अगर आपको इसको समझने में कोई दिक्कत है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आया है, तो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।